Everyone, today we will start with the topic named serializability. So we have discussed earlier about the transactions in our previous class. When we were talking about the transactions, we were executing those transactions concurrently. That means more than one transactions were executing at the same time. कई बार क्या होता था कि if I'm saying कि there are two transactions like say T1 and T2. T1 is operating on some functions and at the same time T is also operating on the same function. So मतलब T1 and T2 are both operating. तो क्या हो रहा था कि कई बार हमारा जो डेटाबेस था वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट में आ रहा था बिकॉज अभी T1 ने कुछ ऑपरेशन किया और अभी डेटाबेस में उसने सेव नहीं किया था एंड बिकॉज उससे पहले क्या कर रहा था T2 ने फिर से उसमें कुछ चेंजेस कर दी. ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ रही थी कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे. ठीक है, उस कॉन्सेप्ट्स को उस इनकन्सिस्टेंट स्टेट जो अराइज हो रही थी उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था सीरियलाइजेबिलिटी का. Serializability is responsible for making our database in consistent state. So उसमें serializability में क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे serial scheduling, serializability, serialize. ठीक है, what is serialize means कि हम क्या करते हैं पहले एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं देन वी आर गोइंग टू परस्यू टुवर्ड्स अनदर ट्रांजेक्शन. सो like see here we have a schedule S. What is schedule? Schedule is a group of transactions. Okay, or we can say that more than one transaction make a schedule. See here we have a schedule named S. We have two transactions T1 and the transaction T2. Here we have read A, write A, read A, write A. That means after operating all these operations in T1 we are pursuing towards T2. That means मतलब read A write A हो गया T1 का. T1 के और कोई प्रोसेस पड़े हमारे पास नहीं है. Then we are pursuing towards T2. After completing these processes we are proceeding towards this. अगर हम इसका प्रेसिडेंस बना दें तो we can say that after T1 we are going towards T2. इसको हम क्या बोल देते हैं सीरियल ट्रांजेक्शन या सीरियल स्केड्यूल. ठीक है, ये हमारा एक सीरियल स्केड्यूल हो गया. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन ट्रांजेक्शंस we are pursuing towards another transaction. So here we have one more example. This is schedule S and we have two transactions T1 and T2. See, read A, write A, then read A, write A. That means these are operating in this timestamp firstly, and then after completing this the timestamp will move towards this. That means we are going towards T1 after completing these two tasks of T2. See, that means अगर हम इसका प्रेसिडेंस बना दें तो T2 to T1. क्या ये एक सीरियल स्केड्यूलिंग है? Yes, this is also a serial schedule because after completing one transaction we are going towards another transaction. So that means अभी अगर serial transaction हो रही है then there is no any such problem in our database and our database is in consistent state. तो सीरियलाइजेबिलिटी फिर क्यों करेंगे? सीरियलाइजेबिलिटी तब करेंगे व्हेन आर डेटाबेस इज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट. सो हाउ इट कैन अराइज लाइक सी देयर हियर वी हैव एन एग्जांपल. दिस इज स्केड्यूल S1. वी हैव टू ट्रांजेक्शंस T1 and T2. read A, then read A, then WA, WA. That means after T1 we are going towards T2. After T2 we are again coming at T1. That means अगर हम इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बना दें तो दैट मीन्स T1 से हम क्या कर रहे हैं T2 पे स्विच कर रहे हैं, T2 से हम वापस T1 पे आ रहे हैं, T1 से हम T2 पे जा रहे हैं, T2 से हम फिर से T1 पे आ रहे हैं. अब हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं. इससे क्या हो रहा है हम अगर हम सीरियल ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं तो इधर ये या इधर ये दो पॉसिबिलिटीज़ है. मतलब या तो ये हमारे ऑपरेशन ऊपर आ जाए, राइट ए पहले एग्जीक्यूट हो जाए और हमारी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए और फिर हम इस पे आए, या क्या करें ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन का ये जो ऑपरेशन है वो नीचे आ जाए और ये दोनों ऊपर चले जाएं टाइम स्टैम्प पे और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे दो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है, इससे क्या हो जाएगी हमारा जो स्केड्यूल है वो सीरियल स्केड्यूल बन जाएगा. ठीक है, इसके लिए हमें क्या बोल सकते हैं टू मेक इट सीरियल
either we can go from T1 to T2, T1 then T2, or from T2 to T1. That means after T2 we can go towards T1. ठीक है, तो इसके कितने पॉसिबल वेज होते हैं, ये हमेशा 2 factorial of the number of transactions होता है. Like see, here we have 2 transactions, that means T1 and T2, these are 2 transactions. तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 into 1, that is 2. ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 2 पॉसिबल वेज हो गए. ठीक है, इस तरह के जो स्केड्यूल होते हैं उसको हम इधर पैरेलल स्केड्यूल बोल देते हैं, और हम इसको नॉन सीरियल स्केड्यूल बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, या तो हम पैरेलल बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, नॉन सीरियल स्केड्यूल. ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्केड्यूल है इसमें 3 ट्रांजेक्शन्स हैं. देयर आर 3 ट्रांजेक्शन्स इन दिस स्केड्यूल. दिस इज T1, T2 एंड T3. ठीक है, इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं. द ऑपरेशंस आर लाइक RA देन RA WA. ये जो इस तरह से पोर्शंस आ रहे हैं, ये हमारा टाइम स्टैम्प दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ये टाइम स्टैम्प इस फर्स्ट टाइम स्टैम्प में ये चलेगा, देन फिर ऐसे, फिर ये ऐसे. ये जो पोजीशन मार्क दिखा रहा है कि इससे ये हमारी पोजीशनिंग स्विचिंग दिखा रहा है कि किस किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है. ठीक है, मतलब सबसे पहले कंट्रोल हमारा यहाँ पे है, देन हमारा कंट्रोल यहाँ पे स्विच हो जाएगा. आफ्टर दीज 2 ऑपरेशंस हमारा कंट्रोल फिर यहाँ स्विच हो रहा है. ये होने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ आ रहा है, ये होने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ स्विच हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल है T1, T2, T3. इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं. अभी हमने प्रीवियस में क्या करा था कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का फैक्टोरियल ले लेंगे तो उतने पॉसिबल वेज बन जाएंगे. जैसे यहाँ पे 2 पॉसिबल वेज बन सकते हैं. ठीक है, तो अगर हाँ यहाँ पे हमारी कितनी ट्रांजेक्शन्स है, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1, दैट मीन्स 6 जो स्टेट्स हैं वो पॉसिबल हैं. ठीक है, वो किस तरह से बन सकती है, इधर T1, T2, T3 पॉसिबिलिटी बन सकती है. दैट मीन्स पहले T1 के सारे ऑपरेशन, ये जो T1 के ऑपरेशन है सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद T2 के ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद T3 के ऑपरेशन यहाँ एग्जीक्यूट हो जाए, या क्या हो जाए, T1 के एग्जीक्यूट होने के बाद T3 के एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके बाद T2 के एग्जीक्यूट हो जाए. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, T2 के पहले एग्जीक्यूट हो जाए, फिर T3 के एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर T1 के एग्जीक्यूट हो जाए ऑपरेशंस, और T2 देन T1 देन T3, और T3 T1 एंड देन T2, और T3 देन T2 एंड देन T1. दीज आर द 6 पॉसिबल वेज कि हम इसको नॉन सीरियल और इस पैरेलल स्केड्यूल को हम सीरियल स्केड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईदर बाय यूजिंग एनी ऑफ वन आउट ऑफ दीज 6 पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, तो अभी हम ये कैसे करेंगे, ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम इसको किस तरह से और कौन सा पॉसिबल वे पिक करेंगे. ठीक है, सीरियलाइजेबल करने के लिए. ठीक है, और अभी हम बात करें सीरियलाइजेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली बात है, अगर हर कॉन्सेप्ट की हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके टाइप्स भी हों. जैसे इस सीरियलाइजेबिलिटी के हमारे पास 2 पॉसिबल टाइप्स हैं. दिस इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड द सेकेंड इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है, व्हाट आर दीज 2 टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है, अभी तक क्या डिस्कस किया है हमने, सीरियल स्केड्यूल्स क्या होते हैं वो डिस्कस करे थे. ठीक है, सीरियल स्केड्यूल क्या होते हैं वो डिस्कस करे थे. देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ पैरेलल स्केड्यूल. पैरेलल स्केड्यूल क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स ये नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है. ठीक है, बार बार प्रोसेसेस के ट्रांजेक्शन्स के बीच में क्या हो रही है, स्विचिंग हो रही है. लाइक सी, बार बार प्रोसेसिंग के बीच में क्या हो रही है, स्विचिंग हो रही है. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल स्केड्यूल. ठीक है, और हमारी सीरियलाइजेबिलिटी क्या करती है, हम सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट गिव्स अस कि जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी में एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं और एक नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं. तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं उनकी जो पोजीशंस है वो स्वैप करते रहते हैं. इस तरह वो स्वैप करते रहते हैं कि एंड में हमारे पास एक सीरियल स्केड्यूल जो है वो क्रिएट हो जाए. मीन्स कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं. ठीक है, तो हम इस तरह से चलेंगे कि हमारी
स्वैपिंग, पोजीशंस की स्वैपिंग, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जब पोजीशन की स्वैपिंग होगी कि मतलब या तो ये एक एक करके ऊपर पहुँचे या ये एक एक करके नीचे पहुँचे और फिर ये ऊपर पहुँच जाए, ठीक है, मतलब इधर ये ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ स्वैपिंग पोजीशन। तो ये स्वैपिंग किस में होगी? ये स्वैपिंग नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स में होगी। और वो क्या करेगा? नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर से स्वैपिंग इस तरह से होगी कि जो हमारा डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए, क्योंकि ये जो पैरेलल शेड्यूलिंग होती है ये हमारे जो डेटाबेस को है वो इनकंसिस्टेंट कर देती है। इसी वजह से हमने क्या करा था? सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या कर देती है? हमारे जो इनकंसिस्टेंट डेटाबेस को उसने क्या करा? कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो पैरेलल स्केड्यूल्स जो बने हुए हैं, पैरेलल स्केड्यूल से हम क्या बनाएंगे? अपने सीरियल स्केड्यूल में जाके उसको चेंज कर देंगे। और ये जो सीरियल स्केड्यूल है वो इस तरह से होने चाहिए ताकि जो हमारा जो डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में हो रहे। वो अब ये जो स्वैपिंग होगी वो किस में होगी? वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स में होगी। अब ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स और कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं नो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पे, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट कब हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि बोथ आर यूजिंग द सेम वेरिएबल, मतलब दो ऑपरेशन चल रहे हैं ट्रांजैक्शन T1 और T2 में, दोनों क्या एक्वायर कर रहे हैं? सेम वेरिएबल पे जो दोनों एक्वायर कर रहे हैं दोनों उस पर टास्क कर रहे हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल पे अगर वो कुछ ऑपरेशन कर रहा है और सेम वेरिएबल पे दूसरी ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर रही है तो इस टाइम पे क्या हो जाता है? हमारी जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। सेकंड थिंग क्या हो जाता है कि दोनों जो सेकंड, सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया कि दोनों सेम वेरिएबल एक्वायर कर रहे हैं, या ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों में सेम ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन सॉर्ट ऑफ चल रही है, ठीक है, और विद सेम वेरिएबल। थर्ड क्या है? हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे रीड ए है और रीड ए है, मतलब ये भी एक वेरिएबल रीड कर रहा है विच इज़ वेरिएबल ए, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है? वो वेरिएबल कर रहा है एक रीड ए, ठीक है। तो ये एक क्या है? हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, क्योंकि रीड ऑपरेशन कर रहा है तो कोई इधर इसमें कोई भी सेम ज़रूर वेरिएबल एक्वायर कर रहा है बट कोई भी एक जो है वो राइट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन नहीं है तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज़ अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, रीड ए राइट ए, ठीक है, दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में है बट वन ऑफ दिस इज हैविंग अ राइट ऑपरेशन एंड बोथ आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम वेरिएबल, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। सी WA and RA both are operating, there is a one right operation and both are acquiring the same variable, so this is also an example of conflict pair. This is right A and this is right A, there should not be any right operation for it to be a non conflict, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि एटलीस्ट टू की से क्या हो रहा है कि दो, मतलब एक दो हमारे पास राइट है एंड बोथ आर एक्वायरिंग द सेम वेरिएबल, सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट कौन से होंगे? नॉन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे ये ले लिया मैंने T1 और T2 ले लिया, ठीक है, दिस इज रीड बी, दिस इज रीड ए, बोथ आर ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। सो ये अपने किसी वेरिएबल पे काम कर रहा है, ये अपने वेरिएबल पे काम कर रहा है, कोई भी किसी के वेरिएबल में क्या कर रहा है? इंटरप्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह का क्या जो पेयर बनेगा वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन जाएगा। देर इज़ राइट एंड देर इज़ रीड, येस देर इज़ अ राइट ऑपरेशन बट बोथ ऑफ देम आर एक्वायरिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, सो दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। रीड बी, दिस राइट ए, बोथ आर एक्वायरिंग ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, बोथ आर एक्वायरिंग ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, सो दिस इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? अभी हमने क्या करा था? कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक सीरियल स्केड्यूलिंग क्या होती है, नॉन सीरियल या पैरेलल स्केड्यूलिंग क्या होती है वो देखा था, ठीक है, उसकी टाइप्स देखी थी। और अब हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट देख रहे हैं, तो इसमें हमने पता कर लिया कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होते हैं और कौन से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव ए स्केड्यूल नेम्ड एस एंड वी हैव ए स्केड्यूल नेम्ड एस डैश। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एस है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है टू एस डैश। दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश। हमें प्रूव करना है कि इज दिस एस इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एस डैश और नॉट। ठीक है, वो किस तरह से होगा? ठीक है, वी हैव दिस ट्रांजेक्शन स्केड्यूल एस विथ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। फर्स्टली क्या हो रहा है? रीड ए राइट ए, देन रीड ए राइट ए, देन रीड बी। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, T1 से T2 पे आ रहे हैं, T2 से हम T1 पे आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक नॉन सीरियल या एक पैरेलल स्केड्यूल है। ठीक है, तो अब नॉन सीरियल या पैरेलल स्केड्यूल को हम क्या करते हैं, हम स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग किसकी करते हैं? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स की। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स क्या हो जाते हैं। मतलब अभी हमें एक सीरियल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको ऊपर लें या हम, ठीक है, या हम इन दोनों को नीचे लें और इसको ऊपर ले जाएं, पर हमें एडजेसेंट पेयर्स चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक ये एडजेसेंट पेयर बन रहे हैं, दिस इज रीड बी, दिस इज डब्ल्यू ए। ठीक है, और ये क्या है? रीड है, ये राइट है। ठीक है, ये राइट आ रहा है, बट बोथ ऑफ दीज आर एक्वायरिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये ए पे काम कर रहा है और ये बी पे काम कर रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर। तो हमने क्या करा, इनकी जो पोजीशन है वो स्वैप कर दी। हम 1 by 1 पोजीशन जो है वो स्वैप करते हैं। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन स्वैप होने से क्या हुआ? रीड ए राइट ए। ठीक है, ये रीड ए तो ऐसे का ऐसे रह गया और ये जो राइट ए था ये नीचे चला गया और ये रीड बी ऊपर चला गया। ठीक है, पोजीशन स्वैपिंग होगी इन दोनों के बीच में यहाँ से। ठीक है, फिर अब हम इसका, अभी हमें इसको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या था, एडजेसेंट पेयर फाइंड आउट किया हमने। ये दिस इज आर एडजेसेंट पेयर एंड दिस इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। ठीक है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर था तो फिर से पोजीशन जो है हमारी स्वैप होगी। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्केड्यूल बन गया। ठीक है, एंड सी इज दिस स्केड्यूल इज सिमिलर टू और इक्विवेलेंट टू दिस स्केड्यूल? यस, दिस इज। सी, read A राइट ए राइट ए, रीड बी राइट रीड बी राइट, read A राइट ए। So we can say that this S and S dash are conflict equivalent pairs। ठीक है, तो अभी हम एक और देख लेते हैं कि देन अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्टिंग आ गया तो फिर कैसे होगा। ठीक है, here we have two transactions T1 and T2। ठीक है, हमें चेक करना है कि इज दिस ट्रांजेक्शन इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास क्या हो रहा है, रीड ए राइट ए, देन रीड ए, देन रीड ए रीड बी। दैट मीन्स we are going from T1 to T2 and T2 to T1। So this is a parallel schedule or we can say that it is a non-serial schedule। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इनको नीचे लेके आ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को, या तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इन दोनों को नीचे लेके आ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऊपर ले जाएं और इसको अगर हम नीचे ले आएँ तो भी हमारी एक सीरियल स्केड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एडजेसेंट पेयर देख लेते हैं। ये हमारा एडजेसेंट पेयर बन जाएगा अगर हमें इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, तो दिस इज राइट ए एंड दिस इज रीड ए। सो वी सेड ना कि इफ़ देर इज़ मिनिमम 1 राइट ए, ठीक है, इफ़ देर इज़ मिनिमम 1 राइट, ठीक है, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स है एंड दे इफ़ दे आर बोथ एक्वायरिंग द सेम वेरिएबल दिस इज ऑल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस राइट ए एंड दिस रीड ए, देर इज़ मिनिमम 1 राइट एंड दिस बोथ आर एक्वायरिंग द सेम वेरिएबल। अगर ये वाला केस लेते हैं तो उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। ठीक है, इस एडजेसेंट कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर को क्या है, हम अभी पोजीशन जो है इसकी स्वैप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी स्वैपिंग जो है वो इसकी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट देर इज़ नो पॉसिबल वे ऑफ मेकिंग दिस स्केड्यूल इन अ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट स्टेट। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट स्टेट कौन सी होगी। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट कोई भी तब होगी जब हम किसी एस स्केड्यूल को हम एस डैश में लेके आ जाएं जो एक सीरियल स्केड्यूल बने, उसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा जो है सीरियलाइजेबल है, दिस एस डैश इज सीरियलाइजेबल। ठीक है,
तो अभी हमने क्या करा था, ये S था और ये S डैश था, हमने इस S को इस S डैश के इक्विवेलेंट प्रूव करा था और चेक किया था ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ जो एडजेसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स थे उनकी जो पोजीशनिंग थी उसको हमने स्वैप हमने कर दी और स्वैप करने से हमने एक सीरियल शेड्यूल बना दिया, उसको हमने कंपेयर किया और कंपेयर करने से हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पेयर आ गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग एडजेसेंट पेयर्स थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे स्विच करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कब होगी? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इससे हम अभी एक प्रेसिडेंस ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3। ठीक है, पहले RX काम करेगा, फिर RY, देन RX, देन RY, RZ, देन WY, WZ, दिस RZ, दिस WX, दिस WZ। ठीक है, ये इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, इससे हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, इधर से हम इधर आ रहे हैं और इधर से हम फिर इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए एक हमें सिंपल से प्रॉपर्टी जो है वो याद रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चेक कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स इन अदर ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉ एज। ये कैसे होगी? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, 3 ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। दिस मीन्स T1 T2 और T3, हमारे पास यही 3 ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने नोड्स को ड्रॉ कर लिया। क्या करा, T1 पॉसिबल है, T2 पॉसिबल है और क्या है, T3। ये हमारे पास 3 जो नोड्स हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, रीड एक्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही चलेगी फर्स्ट टाइम स्टैम्प में, तो यही चलेगी रीड एक्स। रीड एक्स का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या हो सकता है, रीड एक्स का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, ये देखो, ये आपका रीड एक्स है, रीड एक्स का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या हो सकता है, WX। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी करी थी, चेक कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स इन अदर ट्रांजेक्शन। तो हमें अदर ट्रांजेक्शन्स में चेक करनी है। अदर ट्रांजेक्शन, इसकी अदर ट्रांजेक्शन्स कौन सी होंगी, इधर T2 और T3। इसमें हमारे पास राइट एक्स है, राइट एक्स नहीं है, इधर राइट एक्स है, नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस इज़ आ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे कट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इस पे। ठीक है, रीड वाई पे। रीड वाई के का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या हो जाएगा, रीड का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट, इफ़ दे आर ऑपरेटिंग ऑन सेम वेरिएबल। ठीक है, इस रीड वाई का क्या हो जाएगा, राइट वाई। इसमें अदर ट्रांजेक्शन में चेक करना है, इधर हमारे पास राइट वाई है, नहीं है, इधर हमारे पास राइट वाई है, नहीं है। सो वी कैन से दैट कि अभी हमारे पास इसका भी कोई हम प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई भी एज प्ले आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। फिर हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं RX पे। ठीक है, इस RX का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या हो जाएगा, अगर हम इस RX का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हो जाएगा WX। ठीक है, ये हम अदर ट्रांजेक्शन्स में चेक करेंगे। अदर ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएंगी, इधर T1 और T2। ठीक है, इधर देखो WX है, नहीं है, इधर WX है, यस, यहाँ पे है WX, मतलब देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर किस में है, T1 में है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम एक एज प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब एज कहाँ से आ रहे हैं, हम T3 से किस पे आ रहे हैं, T1 में। तो अगर मैं इसका एक ऐसे प्लॉटिंग कर सकती हूँ, एक ऐसे डायरेक्टेड एज बना सकती हूँ। ठीक है, फिर अब हम इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम किस में परस्यू कर रहे हैं, इस पे RY पे। RY का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, RY का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट वाई। दूसरी ट्रांजेक्शन्स में चेक करना है, यहाँ पे है राइट वाई, नहीं है, यहाँ पे है राइट वाई, यस, यहाँ पे ये रहा राइट वाई। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है अगर हम T2 से T3 पे जाते हैं तो। ठीक है, यहाँ से मैंने एक एज में ऐसे प्लॉट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इस RY को भी मैंने कर दिया कट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इस RZ पे। ठीक है, इस RZ का कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, WZ। क्या यहाँ पे WZ प्रेजेंट है, नहीं है, क्या यहाँ पे WZ प्रेजेंट है, यस, यहाँ पे WZ प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, मतलब हम T2 से किस पे आ रहे हैं, T1 पे। ठीक है, ये हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। हम किससे आगे, इस ये रीड Z से हम क्या आगे,
इस पे आ गए, मतलब T2 से हम T1 पे आ गए, ठीक है। फिर हमने इसको भी ऑपरेट कर लिया, इसको भी हम कट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इससे किस पे आ रहे हैं, राइट पे। राइट के कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, राइट के कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, या तो राइट वाई के कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, या तो रीड वाई हो सकते हैं, और या राइट वाई का कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या हो सकता है, राइट वाई हो सकता है। मतलब इसके दो पॉसिबल वेज बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू वाई की, डब्ल्यू वाई के क्या दो पेयर्स बन सकते हैं, या तो रीड वाई बन सकते हैं या डब्ल्यू वाई बन सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें यहाँ अभी हम कहाँ तक पहुँच गए, अभी तक हमने यहाँ तक हमने काम कर लिया है, ठीक है। अब इसके नीचे नीचे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास राइट जेड या रीड जेड है, नहीं है। क्या यहाँ पे राइट जेड और रीड जेड है, यस, ये रहा हमारे पास रीड जेड। मतलब हम T3 से किस पे आ रहे हैं, T1 पे। यहाँ पे देखो कोई प्लॉटिंग है, यस, वहाँ यहाँ पे प्लॉटिंग है T3 से T1 पे। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि ऑलरेडी एज प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओवरराइट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर हम परस्यू करते हैं टुवर्ड्स डब्ल्यू जेड। अब यहाँ पे भी राइट है, तो इसके भी दो पॉसिबल वे बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, या तो हमारे पास रीड जेड बन सकता है, या हमारे पास राइट जेड बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीड जेड या राइट जेड है, यहाँ पे नहीं है। कि यहाँ पे रीड जेड और राइट जेड है, यस है। ये रहा रीड जेड और ये रहा राइट जेड, ठीक है, दोनों हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, हम T2 से किस पे आ रहे हैं, T1 पे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एज प्रेजेंट है, मतलब हम फिर से ओवरराइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ 3 ऑपरेशन पे आते हैं। इसके नीचे अब कोई भी, किसी के नीचे कोई भी ऑपरेशन नहीं रहा, तो हम किसी के भी एज जो है प्लॉटिंग नहीं कर सकते। मतलब अभी कोई भी हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा ये एक जो प्रेसिडेंस ग्राफ है जो वो प्लॉट हो गया, ठीक है। इससे आगे हम कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रेसिडेंस ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रेसिडेंस ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस प्रेसिडेंस ग्राफ का क्यों हमने यूजेज किया था, ठीक है। हमने ये करी थी, पॉसिबिलिटीज़ करी थी कि हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है, इसमें से 6 पॉसिबल वेज बन सकते हैं। अब हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा 6 पॉसिबल वे में से कौन सा पॉसिबल वे पिक करना है कि हमारा जो स्केड्यूल है वो सीरियल स्केड्यूल बन जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला था ना कि इस चीज़ को मैं सीरियल स्केड्यूल बना सकती हूँ कि या तो मेरी T1 की सारी ट्रांजेक्शन्स पहले एग्जीक्यूट होकर उसके बाद हम T2 पे परस्यू कर जाएँ, और आफ्टर परस्यूइंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ T2 वी गो टू टुवर्ड्स T1, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें इसमें करनी है तो ये वाली ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट, फिर ये, इस तरह से कौन सा वे उठाएंगे, ठीक है। इन 6 में से कौन सा पॉसिबल वे पिक करेंगे, वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, इस प्रेसिडेंस ग्राफ को यूज़ करके, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जब भी हमें उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक ये चीज़ देखनी है कि इसमें कोई भी लूप या साइकिल नहीं होना चाहिए। लूप या साइकिल का मतलब क्या होता है कि इफ़ आई से कि मेरे पास 3 हैं, ABC नोड्स हैं, ठीक है। A से B से C से A, तो ऐसे कॉन्टिन्यूशन में हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम A में है तो A से हम वापस A पे आ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा इनिशियल स्टेट है उस पर हम कितनी बार मर्जी रीच कर सकें, बार बार ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी पाथ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक साइकिल बोल देंगे। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई साइकिल प्रेजेंट है। अगर हम T1 से स्टार्ट करते हैं तो T1 से कोई भी हमें कोई भी एज नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर हम T2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम T1 की तरफ चले जाएँ, T1 से आगे कोई एज है, नहीं है। T2 से T3 आ जाए, T3 से T1 आ जाते हैं, T1 से फिर से हम T2 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मतलब हम इनिशियल पे नहीं आ पा रहे हैं। T3 से T1 पे जा सकते हैं, T1 से हम आगे कहीं पे भी नहीं जा सकते। मतलब इसमें हमारा कोई भी लूप या साइकिल नहीं है। वी कैन से दैट देयर इज़ नो लूप एंड देयर इज़ नो साइकिल, ठीक है। अगर नो लूप या नो साइकिल है, ठीक है, तो अभी हमारे पास नो लूप और नो साइकिल है। नो लूप और नो साइकिल का मीन क्या है कि हमारा ये जो स्केड्यूल है वो एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है। दैट मीन्स
कि अगर हमारे पास कोई भी लूप या साइकिल नहीं होगा तो हम उस स्केड्यूल को क्या बोल देंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो हमें पता लग गया क्योंकि दिस इज़ अ नॉन पैरेलल स्केड्यूल एंड दिस देयर इज़ नो लूप और नो साइकिल। बट कैन वी डू दिस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इनटू ए सीरियलाइजेबल स्टेट और नॉट? ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था इन डिग्री का। इन डिग्री क्या है? इन डिग्री इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। वो किस तरह से होनी चाहिए? इन डिग्री इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमें वो नोड पिक करना है जिसके ऊपर हम कभी भी रीच ना कर पाए। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, T1 पे हम रीच कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, येस, यहाँ पे दो नोड्स उस पर रीच कर पा रही हैं। T3 पे T2 रीच कर पा रही है। T2 पे ना तो यहाँ से कोई भी एज रीच कर पा रहा है, ना यहाँ से कोई भी एज रीच कर पा रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, इस T2 की जो इन डिग्री है वो क्या है? ज़ीरो। इट्स इन डिग्री इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो T2 इक्वल टू हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? T2 स्टेट से हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने T2 नोड ले लिया, T2 की सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कंप्लीट कर दी, तो हमारे पास अब कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेफ्ट बिहाइंड रहेगी? T1 एंड T3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस T3 और T1 में ये देखेंगे, मतलब अगर ये हट गया तो ये वाले जो एजेस हैं ये भी रिमूव हो गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये T3 टू T1। ठीक है, तो अब इसमें से हमें चेक करना है इन डिग्री इक्वल टू ज़ीरो किसकी होगी। यहाँ पे हमें कोई पाथ मिल रहा है जिससे हम T1 पे जा सकते हैं, येस, यहाँ पे एक पाथ है। क्या यहाँ पे हम किसी पाथ से रीच कर सकते हैं T3 से? नहीं, वी कैन नॉट रीच टू T3 बाई एनी ऑफ द पाथ। सो वी कैन से दैट दिस इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इन डिग्री ज़ीरो। मतलब T2 की सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होने के बाद हम किस पे करेंगे सारी ट्रांजेक्शन? T3 की कंप्लीट करेंगे सारे ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम T1 के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि हमने इस पॉसिबिलिटी में से ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये हम अगर ये वाली पॉसिबिलिटी पिक कर लेंगे तो हमारे ये जो स्केड्यूल है वो हमारा स्केड्यूल क्या हो जाएगा? सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो अगर हमारा ये सीरियलाइजेबल हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा जो डेटाबेस है वो किस में आ गया? कंसिस्टेंट स्टेट में। दैट मीन्स अभी हमारा जो डेटाबेस है कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो वही आ रही थी ना कि जो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स चल रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो डेटाबेस था वो एक इनकन्सिस्टेंट स्टेट में आ रहा था। आफ्टर सीरियलाइजेबिलिटी हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या होगी? सीरियल होगी, और सीरियल होने के बाद हमारा जो डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में आ गया। ठीक है, तो अभी हमने इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट किया था, सीरियल ट्रांजेक्शन्स नो और पैरेलल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, सीरियल स्केड्यूल और पैरेलल स्केड्यूल क्या होता है वो चेक किया था। देन वी वेंट थ्रू सीरियलाइजेबिलिटी इक्विवेलेंट, then serializability, conflict serializability, and in our next class we will discuss about view serializability, and we will see further properties of serializability in our next class. Please go through it and please let me know if you have any issue in it. Thank you so much.